گزشتہ 3 سالوں کے دوران جام کمال خان وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خراب حکمرانی کے باعث بلوچستان میں شدید مایوسی، بدامنی، بے روزگاری اور اداروں کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ یہ کہ وزیر اعلیٰ جام کمال نے اقتدار پر برجمان ہو کر خود کو عقل کل سمجھ کر صوبے کے تمام اہم معاملات کو مشاورت کے بغیر ذاتی طور پر چلایا ہے، جس سے صوبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، جبکہ اس بارے میں انہیں کابینہ اراکین وقتاً فوقتاً آگاہ بھی کرتے رہے، لیکن انہوں نے یہ جانب کوئی توجہ نہ دی۔ علاوہ ازیں بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے وفاقی حکومت کے ساتھ آئینی اور بنیادی حقوق کے مسائل پر انتہائی غیر سنجیدگی کا ثبوت دیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، جس کو 33 ارکان کی حمایت حاصل تھی۔ اراکین نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر قرارداد کی حمایت کی۔ آئین کے مطابق قرارداد کی کامیابی کے لیے ایوان کے آدھے ممبر کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں ارکان کی تعداد 65 ہے، جس میں سے 33 ارکان نے قرارداد کی حمایت کی۔ ووٹنگ 25 اکتوبر کو اب ہوگی۔ اب جام کمال کے دن گنے جا چکے ہیں، البتہ ابھی 3 دن باقی ہیں۔ آج بھی 5 ارکان مبینہ طور پر لاپتہ رہے۔ ان 3 دنوں میں بلوچستان میں سیاسی کھیل کوئی نیا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے ہم نے دعوت دی اپنے خاص مہمانوں کو، مگر اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ بڑا سوال بنتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ حکومتی ارکان اور ایک پارٹی سے منسلک اپوزیشن کے ساتھ مل کے کوئی تحریک لا رہے ہوں۔ تو یہ تو اپوزیشن تو کبھی بات کر بھی نہیں سکتی ہے۔ ہاں، اگر یہ بات ہوتی کہ اگر یہ پورا عدم اعتماد یہ پوری کولیشن کی طرف سے آتی، پھر آپ کسی بات پہ کہہ سکتے تھے، لیکن ایک جماعت تو ہے ہی اپوزیشن میں۔ ہمارے اتحادی جماعتیں بشمولیت بلوچستان عوامی پارٹی کے مین سٹیک ہولڈرز، یہ جو 26 لوگ بلوچستان عوامی پارٹی اور باقی تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، ہزارہ ڈیموکریٹک، JWP اور ہمارے ساتھ احسان شاہ صاحب بھی ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم امید کریں گے سردار ثناء اللہ صاحب بھی ہوں گے۔ تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد صرف نمبر میں نہیں ہے، ان سب لوگوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے پورے بلوچستان میں بڑی وسیع ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ جام کمال نے ثناء اللہ بلوچ کا ذکر کیا، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور یہ کہنا اس وقت ضروری ہے کہ انہوں نے آج ایوان کے اندر کھڑے ہو کے ایک تقریر کی جو جام کمال صاحب کے خلاف تھی۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کوئٹہ سے مجیب احمد، بلوچستان میں آج ٹی وی کے بیورو چیف ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار ہمیں جوائن کر رہے ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، صدر ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے۔ لیاقت شوانی صاحب ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں، بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں۔ سب سے پہلے مجیب صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آج آپ ایوان میں تھے، یہ جو 5 ارکان غائب تھے جس کے اندر سے ایک جو ہیں لالا راشد، وہ دم کرا کے واپس آ گئے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ غائب رہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ووٹنگ ہوگی تو کیا جام کمال صاحب اپنی حکومت بچا پائیں گے کہ نہیں؟ منیزے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ آج کے جو فگر اپوزیشن اور ناراض گروپ نے پیش کیا 33، وہ بہت نمایاں تھا۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ جام صاحب کے بالکل دن پورے ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا نظر ڈالنی ہوگی کہ جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اور سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا تو گراؤنڈ ریئلٹیز اسی قسم کی تھی، لیکن وہ پھر بدل گئی تھی۔ تو آج یہ 5 ارکان نہیں آئے، ان میں سے ایک لالا رشید آئے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ دم کرانے گئے تھے، بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، وہ خیر موجود وہاں رہے۔ 4 دیگر ارکان نہیں آئے، ان کے بارے میں سردار کیتران کا کہنا تھا کہ وہ مسنگ پرسنز شمار کیے جا رہے ہیں، ان کو کہیں رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے الزام بھی لگایا کہ شاید اس میں بلوچستان کی حکومت جو جام کمال کی ہے وہ اس میں ملوث ہو سکتی ہے۔ پھر طارق مکسی نے آ کے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ باقاعدہ ان ارکان سے رابطے میں ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں آنا چاہتا، کسی کے ذاتی مسائل ہیں، تو اس میں کوئی زبردستی تو نہیں ہے، کوئی بچے تو نہیں ہیں وہ کہ ان کو کوئی روک کے بٹھا لے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو ناراض گروپ ہے اور اپوزیشن ہے اس کی پوزیشن مستحکم ہے، اور وہ 33 کے ارکان کے ساتھ شاید اور بھی بڑھا لے اپنی پوزیشن کو، لیکن جب ووٹنگ ہوگی، رائے شماری ہوگی، تو اس وقت نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 33 بھی پورے رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔
क्योंकि हालात बदलते बलूचिस्तान में तो बिल्कुल देर नहीं लगती। और जिस कदर मुतमईन जाम कमाल खान और उनकी काबीना के लोग नजर आ रहे हैं, उन्हें जरूर पता है कि उनके साथ कौन लोग हैं और एंड टाइम पर वो लोग किस तरह अपोजिशन को और नाराज लोगों को किस तरह धोखा देंगे। उन्हें बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि मालूम है, और वो उनकी मुस्कुराहटें भी ये बता रही हैं कि उनकी पोजीशन काफी मजबूत है। अच्छा, उन्हीं से पूछ लेते हैं। लियाकत शवानी साहब बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान है। लियाकत शवानी साहब, जिस तरह के मुजीब साहब बता रहे हैं कि आप लोग खासे इत्मीनान, आप लोगों को लग रहा है कि यू आर सेटिस्फाइड, अब ये जो आपकी फीलिंग्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं? इसलिए चूंकि 33 लोग जो हैं आज ईवान के अंदर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम जाम कमाल साहब के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद के अंदर वोट जो है डालेंगे, और वो अपनी सीट के ऊपर खड़े हो गए। नंबर गेम तो ओवर है जी, 33 लोग चाहिए कामयाब होने में। नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो 33 लोग अपनी सीट से खड़े हो गए। व्हाट आर यू होपिंग फॉर जी कि इन चंद दिनों में क्या होगा? लियाकत साहब, लियाकत साहब से फिर से हम कोशिश करेंगे कि राब्ता हो जाए। शहजादा जुल्फिकार साहब, आप क्या समझते हैं, क्या जाम कमाल साहब जो है ये जो मूव आई है नो कॉन्फिडेंस की, ये सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, आज के बाद तो सर्वाइव कर पाओ जी। शहजादा साहब, जी मुजीब साहब, जो एक और बात आपसे पूछी थी, ये जो 5 लोग हैं जिसके अंदर से बाकी जो बुशरा रेन, सॉरी जी, वो लाइन उसमें डिस्ट्रप्शन आ गई थी। मैंने कहा बात यह है कि उस वक्त तक तो बिल्कुल ये था कि 41 और 40 के करीब लोग हैं, और कल रात जब इकट्ठे हुए थे तो अच्छे खासे लोग थे। वो मिसिंग पर्संस आप कह लें, मिसिंग एमपीएस कह लें, वो सब मौजूद थे सिवाय लाला रशीद के, और वो उन खाने में मौजूद थे। और आज जो नाराज अरकान है और अपोजिशन के लिए काफी सेटबैक था, मैं समझता हूं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन काफी चीखे इस बात पे। ये काम नाराज अरकान का होना चाहिए, लेकिन वो ये दावा कर रहे थे हमारे लोग तो नाराज अरकान के थे ना। लेकिन आज लीडर ऑफ अपोजिशन मलिक सिकंदर साहब जो है, ये दिन को मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा हम बिल्कुल इंटैक्ट हैं 23 लोग। हालांकि 23 लोग इसलिए नहीं है कि सरदार अख्तर मैंगल जो है, उनकी पार्टी ने एक एमपीए को उस पर इल्जाम लगा के या प्रूफ कर लिया, हो गया था कि उन्होंने सेनेट में वोट बेचा। अच्छा, उनको तो पार्टी से निकाल दिया, रिकमेंड कर दिया, उनकी अभी अनसीट नहीं हुई वो। तो 22 अरकान वो हैं। बाकी 2 अरकान मेरे लिए काफी हैरत है कि रात शायद उन्होंने लेट नाइट देखा कि ये कामयाब होने जा रहा है। आपके नूर मोहम्मद दुमड़ साहब और एहसान शाह साहब जो वजीर आला के साथ, वजीर आला की टीम के साथ बिल्कुल राब्ते में थे कि नहीं भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल उन्होंने आखिरी टाइम ये देखा कि मेरे ख्याल में कि ये तो वजीर आला साहब जा रहे हैं तो हमें चला जाना चाहिए। अगर वो आज नहीं जाते तो आज 31 से इनकी तादाद बढ़ती नहीं। लेकिन आज के जो ये 4-5 है, जहां से भी उनको प्रेशर आया, कहां से प्रेशर आया, मना लिया गया, प्रेशर आया, कुछ आया, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिस तरह मुजीब साहब अभी कह रहे थे कि जिस तरह ऊपर इत्तेमाद है और आगे जब वोट काउंट का वक्त आएगा तो 1-2 और भी कम हो सकते हैं। अगर 1-2 भी कम हो गए तो इसका मतलब मूव कामयाब नहीं हो सकती। और उसके बाद जब नाकाम होता है मूव, तो जितने लोग हैं उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर वो दौड़ना शुरू कर देते हैं उस तरफ जिनका पल्ला भारी होता है। आज अगर जाम कमाल साहब का पल्ला जो है वो बिल्कुल भारी नहीं होता तो अभी तक राब्ते जो है वो वहां से भी टूट के आ रहे होते, उनके कोलिशन पार्टनर भी आ रहे होते, और मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि जाम कमाल साहब बहुत वीक पोजीशन पे होते। लेकिन आज उन्होंने तकरीर भी की और इनको पता था शायद, क्योंकि सुबह तक इनको पता चल चुका था कि कौन से लोग हमसे टूट गए हैं। वो आज भी बार बार कह रहे थे कि इखलाक का तकाजा ये है, इखलाकी तौर पर वो इस्तीफा दे दें। जाम कमाल साहब कहते हैं कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, आप प्रूफ करो कि आप एक की तादाद इतनी ज्यादा है कि मैं फेल हो गया हूं टू कमांड उसका मेजॉरिटी के जो कॉन्फिडेंस को कमांड कर रहा हूं, मैं नाकाम हो गया कमांड करने में, आप मुझे फारिग कर दें, निकाल दें। लेकिन इनका पूरा वो था कि नहीं जी हम आपको इज्जत से घर भिजवाना चाहते हैं।
तो मेरे ख्याल में एक इज्जत और बेइज्जती की कोई बात नहीं है, पॉलिटिकल एक प्रोसेस है, उसमें पूरी अपोजिशन की और दूसरे सबकी पूरा राइट है कि वो इकट्ठे होकर किसी को निकालें, किसी को रखें। मगर देखिए शहजादा साहब, मुजीब साहब भी आपसे भी मैं पूछती हूँ ये सवाल कि देखिए एक और मसला भी है, वो ये है कि बाप पार्टी का सरबराह इस वक्त कौन है, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है, चूंकि वो मामला भी कश्मकश में पड़ा हुआ है। तो इस वक्त जो बाप पार्टी क्या वाकई में क्वेटा के अंदर वाज़े तौर पे दो हिस्सों में तकसीम हो गई है और ऐसे ही रहेगी, या जिस तरह के वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं कि नहीं इकट्ठी है, मैं इसका सरबराह हूं, मेरे नीचे जो है वो यूनिटी उन्होंने कायम की हुई है। मुजीब साहब, मुनीज़े, इसकी लीगल पोजीशन को देखना होगा। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने ट्विटर पे अपने हैंडल के जरिए कहा था कि उन्होंने सदारत से मुस्तफी होने का फैसला कर लिया है और उन्होंने दरख्वास्त की थी जान जमाली और मजदूर काकड़ से कि वो नए इलेक्शन कराएं। बिल्कुल। लेकिन इसके हवाले से उन्होंने कोई तहरीरी इस्तीफा अपनी मरकजी ऑर्गेनाइजर, जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं जान जमाली, सेक्रेटरी जनरल को नहीं भेजा। तहरीरी तौर पे कोई इस्तीफा नहीं दिया था उन्होंने कहा था कि उन्होंने फैसला कर लिया और वो अपने फैसले से बाद में फिर गए और उन्होंने कहा उन्होंने फैसला किया था, उन्होंने दिया नहीं अपने साथियों के इसरार के बाद। अब लीगल पोजीशन अगर इलेक्शन कमीशन में देखें तो वहां पे तो उन्हीं की चलेगी, और अगर कायम मकाम सदर को देखें जिनके साथ पूरी नाराज ग्रुप है, जनरल सेक्रेटरी मजदूर काकड़ हैं, इवन चीफ ऑर्गेनाइजर जान जमाली भी है, उनका ये कहना है कि वो मुस्तफी हो चुके, तो ये कानूनी लड़ाई छिड़ जाएगी। लेकिन बाप अगर देखें आप इसको तो अमलन दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। अगर जाम साहब सरवाइव कर जाएं तब भी ये मामलात यहाँ रुकने वाले नहीं है, और अगर सरवाइव ना करें तब भी ये नया धड़ा बनेगा। तो आइंदा इलेक्शन की तरफ अगर आप नजर डालें तो आपको बाप टूट फूट का शिकार होती नजर आएगी, और शायद कोई नई पार्टी या फिर ये वो होगा कि कुछ जो बड़ी पार्टी नेशनल पार्टीज हैं वो इनको अपने साथ ले लेंगी। और जिस तरह पहले भी हमने देखा कि माजी में आसिफ अली जरदारी साहब काफी एक्टिव रहे बलूचिस्तान में, और जो हमारे लोग हैं बलूचिस्तान के अक्सर लोग, खासतौर पर नाराज ग्रुप के साथ जो लोग हैं वो उनके साथ भी राब्ते में। तो मुस्तकबिल में हम ये भी देख सकते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के करीब हो जाएं या फिर कोई नई पार्टी बना लें, लेकिन बाप का अपना मुस्तकबिल कुछ इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा आइंदा इलेक्शन तक। शहजादा जुल्फिकार साहब, जिस तरह मुजीब साहब कह रहे हैं कि जी बाप का जो मुस्तकबिल है वो हमें अच्छा नजर नहीं आ रहा, आप इनकी बात से मुत्तफिक हैं? देखिए मैं पहले उसका जवाब दे दूं जो आपने वो कहा, मेरे थोड़ी सी इस हद तक तो बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, और वो बिल्कुल इंटेंशन उनका यही था इस्तीफा देने का। उनके रफका ने उनके साथ बैठ के वो किया, और शायद मेरे ख्याल में कानूनी माहिरीन ने कि ये तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन, अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो आप सदारत अपने हाथ में नहीं रखेंगे तो सदारत किसी और के पास चला जाएगा, और इलेक्शन कमीशन में उसके जितने वो खतूत लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, बड़ी अहमियत कामिल होगी। तो यानी कि अभी जंग का मैदान ना छोड़ेंगे, उनके लोगों ने, एडवाइजर्स ने उनको, जाम कमाल साहब को कहा, और अब ये हुआ कि उन्होंने ये कर लिया, और उसने आपने देखा इस्लामाबाद में जाकर उन्होंने अपना लेटर भी दे दिया कि मैंने जरूर कहा था ट्विटर पे, और मैंने कोई बाकायदा तौर पर नहीं किया। गलती ये हो गई जान जमाली साहब से और ज़हूर बुलैदी साहब से, सईद अहमद हाशमी जो इस वक्त बानी अपने वो कहलाते हैं कि मैं बानी हूं इस पार्टी का, उनसे गलती ये हो गई कि वो इलेक्शन जल्दी से करा देना चाहिए। उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। अब नॉमिनेट की वो हैसियत नहीं होती, या तो जाम साहब बाकायदा इस्तीफा रिटर्न में दे देते और वो अखबारात और इलेक्शन कमीशन तक चला जाता है, पार्टी के लोगों तक चला जाता। गलती इनसे हो गई, उन्होंने उठा के एक नॉमिनेट कर दिया। अब नॉमिनेट कर दिया, ज़हूर बुलैदी साहब ये समझने लगे कि मुझे नॉमिनेट कर दिया, वजीर आला का भी उम्मीदवार मैं हो सकता हूँ, तो इस दौड़ में मैं शामिल हो जाऊंगा। अब जब वो शामिल हो गए इस दौड़ में, तो वो फिर और इसमें कोई दो राय नहीं है, पार्टी डिवाइड हो गई है। अलबत्ता ये कंप्रोमाइज, ये अगर आप पार्टी को देखें, कंप्राइज करती है उन लोगों पर कि जो किसी वक्त भी जिनका नजरिया नहीं है, जिनके कोई बाकायदा को वो नहीं है, वो किसी वक्त भी उनको कहीं भी हाँक सकते हैं। मगर शहजादा साहब देखिए, जो वजीर आला, शहजादा साहब वजीर आला जाम कमाल जो बात करते रहे हैं ना, वो ये कहते रहे हैं कि जी
मैं चूंकि इनको रिश्वत नहीं लेने देता था, मैं चूंकि उनको सराहता नहीं था, आउट ऑफ टर्न फेवर्स नहीं देता था, इसलिए लोग मेरे खिलाफ हो गए। दूसरी तरफ से ये शिकायत लगाई जाती है कि वो किसी से मिलते नहीं हैं, मुलाकातें नहीं करते, डेवलपमेंट बजट रिलीज नहीं करते। तो सच क्या है? क्या जाम कमाल साहब? एक बात मैं देखिए, हमें कुछ नहीं पता अंदर क्या होता रहा है, ना आपको पता ना मुझे पता। हमें कोई बताएगा तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन सिंपल एक बात है, अगर हम तज्जिया करने बैठे, ये तमाम शिकायतें थी, वो बहुत डिक्टेटर बने हुए थे, मिलते नहीं थे, 4-4 घंटे उनको बिठाते थे। अच्छा। कोई काबीना में, किसी ने कोई काबीना में ये बात उठाई, असेंबली के फ्लोर पर ये बात उठाई, मीडिया के सामने उन्होंने कोई बात उठाई कि ये बड़े डिक्टेटर हैं, काम नहीं करने देते हैं, खुद काम नहीं करते हैं, अक्ल कुल अपने आप को समझते हैं, वो कोई मसला है? हाँ। या वो हमें ये पता चल जाए कि जी ये रिश्वत का मसला है? मसला देखें कुछ है, मसला सिंपल, अगर आप उसको कंक्लूजन को ड्रा करें, मसला जरूर है, शायद इस एमपीएस इस मिनिस्टर को इतनी खुली छूट नहीं थी जो शायद वो कुदुस बिजेंजो साहब के 6 महीने के दौर में अच्छा। वो याद करते हैं, कहते हैं कि वो कोई इस तरह की बात जरूर थी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी सिंपल बात है कि वो कहें कि जी ये कुछ काम नहीं करने देते हैं, सारी खराबियों का। मैं एक प्रोग्राम में था, मलिक सिकंदर साहब ने कहा जी बड़े करप्शन का मसला था, एक वजीर साहब भी शामिल थे, तो उनसे जब पूछा कि ये तो करप्शन में, तो फिर आप भी शामिल थे। अगर वजीर आला साहब अकेले तो शामिल नहीं थे ना, जहूर गुलेदी साहब अगर तमाम खराबियों को कह रहे हैं तो ये तमाम लोग शामिल थे। अपोजिशन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, जो इल्जामान लगाए वो कर सकती है, इसलिए कि वो शामिल नहीं थी अच्छे और बुरे में। ये तमाम लोग तो शामिल थे, अच्छे बुरे के शामिल हैं, अगर क्रेडिट भी लेंगे तो अच्छे का, ये सब शामिल है। हमें ज़ियाउल्लाह लांगू ने भी ज्वाइन किया है, होम मिनिस्टर हैं बलोचिस्तान के, और कहा जाता है कि वजीर आला के साथ हैं। ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आज 33 अरकान ने कहा है कि हम वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ वोट डालेंगे। अभी जो है वोटिंग बाकी है, आप उम्मीद क्या कर रहे हैं कि ये जब वोटिंग होगी तो क्या होगा? चूंकि इस वक्त 33 अरकान आपके अपने जो हैं बाप के लोग, वो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। ये एक जमहूरी अमल है, जमहूरियत का हिस्सा है। जिस तरह पहले दिन से अपोजिशन वाले दावा कर रहे हैं, पीडीएम वाले, कि हमारे पास 40 लोग थे, कल रात को इनकी कोई दावत थी तो उस पर ये लोग 36 लोग बैठे हुए थे। तो कुछ पार्टी के हमारे दोस्त अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए उन्होंने आज के इजलास में शिरकत नहीं किया, जिससे उनका स्कोर 33 है। तो इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि आज उन्होंने 33 का स्कोर किया है, लेकिन हम पर उम्मीद है ये 3-4 दिन हमारे साथ हैं, हम मजीद जो है सादा अक्सरियत के लिए भी अभी हमें एक बंदे की जरूरत होगी। तो हम अपने दोस्तों से मिलके, हम उम्मीद है कि जिस तरह हमारे 3-4 दोस्तों ने आज फैसला किया कि वो इजलास में नहीं है, तो हमारे कुछ और दोस्त भी इंशाअल्लाह अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे। ज़ियाउल्लाह साहब, वजीर आला साहब ने उम्मीद लगाई हुई थी कि सनाउल्लाह बलोच उनका साथ देंगे, मगर आज तो उन्होंने धुआंधार तकरीर की है प्रोविंशियल असेंबली में। तो अब आपकी जो उम्मीदें हैं, क्या वो हकीकत के ऊपर मबनी है? देखिए, सनाउल्लाह बलोच से तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वो बलूचिस्तान की जो हुकूमत चल रही है, उस हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से उनकी अपनी सियासत को बहुत ज्यादा खतरा है। उन्होंने नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब का कहा था, जो बलूचिस्तान असेंबली के रुकन है, और वो आज नहीं आए थे इस इजलास में। तो उनसे आपको उम्मीदें हैं सनाउल्लाह ज़हरी साहब से? देखिए, वो भी एक कबायली सरदार हैं, हमारे कुलीग हैं, हम जरूर उनसे राब्ते में हैं और मजीद राब्ता करेंगे कि उनको भी हम मुतमईन कर सकें। आपने कहा मुतमईन कर सके, मगर देखिए एक तरफ से ये सवाल किया जाता है कि ये जो 33 लोग हैं, इसके न से जो आपके नाराज अरकान हैं, वो तो आपके खिलाफ इसलिए भी हुए चूंकि उन्होंने आके ये कहा कि जी हमें डेवलपमेंट बजट ये हुकूमत नहीं देती थी। तो अब आप क्या मुख्तलिफ कर सकते हैं इनको अपने पास लाने के? आप डेवलपमेंट बजट रिलीज करेंगे, कैसे इनको मुतमईन करेंगे? मुझे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हकायक हैं उनको जरा हमें स्टडी करना चाहिए और देखना भी चाहिए। आप बलूचिस्तान के हवाले से फेडरल पीएचडीपी पढ़ लें और प्रोविंशियल पीएचडीपी पढ़ लें। जितना पैसा बलूचिस्तान की तारीख में, इसमें इमरान खान साहब के भी मशहूर हैं, उनकी हेल्प की वजह से जितना पैसा बलूचिस्तान में लगा है,
तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती बलूचिस्तान में। फिर ये आपसे नाराज क्यों है, इसकी क्या वजह है? इसमें देखें, कुछ दोस्त तो पहले दिन से ही जाम साहब की हुकूमत बनने से ही नाराज थे, और कुछ लोग छोटी छोटी शिकायतें जरूर हर जगह हर माहौल में आप काम कर रहे होते हैं तो पुलिस में छोटी छोटी शिकायतें होती हैं, तो छोटी छोटी शिकायतें उनकी हैं, कुछ को हमने एड्रेस किया है, कुछ को हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुजीब साहब, आपने उनकी बात सुनी ज़ियाउल्लाह लांगू साहब की, वो ये जिस तरह के आप कह रहे थे बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं, मगर मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान के अंदर जो तब्दीली की हवाएं हैं वो कहीं और से चलती हैं, तो जिस तरह सनाउल्लाह ज़हरी साहब के साथ हुआ, आपको लगता है कि शायद जाम कमाल साहब के साथ भी वही हो रहा हो? और आपने पहले भी इसका जिक्र किया था कि अंदिया कहीं और दिया जा रहा है, मैसेजिंग पंजाब की तरफ हो रही है। जी बिल्कुल मुनीज़े, इसमें डाउट ही नहीं है। ये अब ये बलूचिस्तान में मुत्तहिदा अपोजिशन का नाम दे दिया गया है, मगर है तो बहरहाल वो पीडीएम ही अपोजिशन लीडर हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी आप इसको पीडीएम से ना जोड़ें। पिछले प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि जी आप हमारा काम खराब करते हैं पीडीएम का नाम लेके। पीडीएम से असल में उनको घबराहट इसलिए भी होती है क्योंकि अगर पीडीएम का नाम आएगा तो वफाकी हुकूमत अलर्ट हो जाएगी और वो फिर इस तहरीक को कामयाब होने नहीं देगी। और अब भी ऐसा महसूस होता है कि वजीर आजम फुल सपोर्ट पे आएंगे अपने इत्यादियों की, और जो नाराज अरकान है खास तौर पे जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं वो अरकान भी शायद अगले इजलास में जाम साहब के खिलाफ वोट ना करें। इसके अलावा भी कुछ और लोग होंगे जो वोट नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो जाम साहब ने कहा कि उनको डेवलपमेंट बजट देने और वो उस सवालों से उनसे नाराजगी का इजहार करते हैं, तो जाम साहब की हुकूमत 3 साल हो गए। ये हुकूमत भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। जितनी करप्शन इस दौर में हुई है पहले भी नहीं होती थी। अच्छा। मुझे ये कहना कि जी सब जाम साहब ने अच्छा कर लिया, ऐसा हरगिज नहीं था। यही वजीर यही मुशीर थे, और इनके बहुत सारे केसेस, बहुत से लोगों के अभी भी इंक्वायरीज नैब में पेंडिंग हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीजें लोग देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को नजर आ रहा है कि सब अच्छा है, सब अच्छा जाम साहब के दौर में भी नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीजें जाम साहब ने अपने हाथ में ले ली थी, तो उस पे काफी नाराजगी का इजहार किया जाता रहा। लेकिन नाराजगी का इजहार जैसे शहजादा साहब ने कहा, उसके लिए जो फोरम थे उन पे कोई नाराजगी का इजहार 3 महीने पहले तक के उठा के देख लें। वही लोग जो कहते थे कि हमारा कायद है, जो कायद कहने वाले लोग थे आज वही सारे इकट्ठे हो गए उनके खिलाफ। तो ये चीजें देखने की हैं कि मामलात कहीं और से ही हवा चल रही होगी, यहाँ पे लोकली अहम बात की है मुजीब साहब, शहजादा जुल्फिकार साहब, जिस तरह मुजीब साहब कह रहे हैं कि हवाएं कहीं और से चल रही हैं, तो क्या जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है तरीके अदम एतमाद मूव हो चुकी है, अभी तक कामयाब तो नहीं हुई, क्या खबरदार किया जा रहा है? और क्या पंजाब को खबरदार किया जा रहा है कि पंजाब में भी ये हो सकता है? देखिए जरूर फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ कामयाब होते हैं हम, तो मैं तो या सेंटर में कह रहा हूँ कि अगर तो यहाँ कुछ तब्दीली आती है, क्या पंजाब में लोग नाराज नहीं बैठे हैं? क्या वफाक में लोग नाराज नहीं बैठे हैं? एमक्यूएम की नाराजगी बार बार आती रही है, वो सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस है उनकी नाराजगी बार बार आती रही है, पीटीआई के लोग नाराज हैं, बाप के लोग नाराज हैं, तो नाराजगियां तो हैं, तो वो जरूर उसका फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा, और ये वार्निंग हो सकती है कि उनको वार्न किया जाए कि यहाँ से कुछ होगा तो वहां भी आपकी तरफ जो है ये चीजें होंगी। लेकिन अब देखना ये है, आप कह रहे हैं ना हवाएं, देखिए हवाएं एक ही तरफ से बलूचिस्तान में, मुझे नहीं पता दूसरे सूबों का, लेकिन बलूचिस्तान में हवाएं तो एक ही तरफ से चलती हैं। अच्छा। और वो कॉरिडोर है, विंड कॉरिडोर है। अच्छा। और उस विंड कॉरिडोर से कभी तेज हवाएं होती हैं, कभी मध्यम हवाएं होती हैं। अब वो हवाएं अगर इस वक्त बहुत ज्यादा और जाम साहब के हक पे हुआ, तो मैं नहीं समझता कि जाम साहब को कोई हटा सकता है और या कोई होगा। और बल्कि आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि 2-2, 3-3 करके सब वापस जा रहे होंगे बैक टू पवेलियन। और अगर हवाएं नाराज अराकीन की उसमें है, तो जाम साहब तो एक दिन नहीं टिक सकते, और बहुत मुश्किल है कि वो उनके लिए मसला और इस मरहले को, और मैं समझता हूं कि इस मरहले को भी तय करने में वो हवाओं का ही जो है वो असर है। जी अच्छा, मलिक सिकंदर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, ऑपोजिशन लीडर है, हमारे साथ फोन के ऊपर है। मलिक सिकंदर साहब,
بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آج 33 اراکین جو ہیں انہوں نے جام کمال صاحب کے خلاف جو ہے کھڑے ہو کے تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کیا ہے. ہمارے ساتھ شہزادہ ذوالفقار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مجیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں کہہ رہے تھے کہ آپ نے امید لگائی ہوئی تھی کہ زیادہ لوگ ہوں گے, آج کم ہیں. آپ کو مایوسی ہوئی؟ بہت شکریہ, اور میرے دونوں بھائیوں کو بھی سلام. اصل میں ہمارے کل کے گیدرنگ کی بنیاد پہ آج ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے 36 اور 37, وہ ہوا یہ کہ ہم 5 افراد مسنگ ہو گئے اور ان کو شنید میں یہ کہ ان کو گرفتار کیا گیا. وہاں ہم نے مطالبہ بھی کیا. ان میں سے پھر ایک صاحب تشریف لیا ہے, لالا رشید, جبکہ ہماری صف کی 3 خواتین اور ایک ایم پی اکبر آسکانی صاحب وہ اخیر تک نہیں پہنچ سکے. تو اس طرح ہمارے پہلے 33 تھے, جب وہ لالا رشید آئے تو 34 ہو گئے. اب اگر وہ 4 اور وہ ہوتے تو آج 38 کا جو پاور شو تھا وہ, ادروائز یہ تو 20% ریکوائرڈ تھا آج کے دن کے لیے, لیکن آج ہم 38. نہیں مگر جس دن ووٹ ہوگا تو یہ نہ ہو آپ کے مزید 5 اور لاپتہ ہو جائیں. دیکھیں جی, یہ تو اگر ظلم ہوتا ہے, جبر ہوتا ہے, لیکن ساری دنیا نے کل بھی دیکھا, آج بھی دیکھا. اس کے بعد بھی اگر اس قسم کی کاروائی ہوتی ہے, اس قسم کا ظلم اور جبر ہوتا ہے, اس کو تو تمام دنیا اور تمام پاکستان اور تمام پروڈنٹ مائنڈ کے لوگ اور تمام آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ غائب ہوئے ہیں, لاپتہ ہوئے ہیں, ان کو جام کمال صاحب نے حراست میں لیا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہ جب مسنگ ہوتی تو جام کمال نے وہ کیا سارا. ان کا یہ تھا کہ وہ 32 کر دیں گے, آج کے دن کے لیے یہ ہو جائے گا کہ 32 آ گئے, 33 نہیں پورے ہوئے, تو میں انشاءاللہ اگلے مرحلے پہ وہ ناکام بنا دوں گا. لیکن اس کے اس نیت کے باوجود 33 پورے ہو گئے, اور بعد میں ایک صاحب ہمارے ان کی وہاں سے چھوٹ کر آئے تو 34 ہو گئے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. ظلم ہے تو ایک آدمی کے راستے سے جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. مجیب صاحب آپ کا بھی, اور شہزادہ ذوالفقار آپ کا بھی. ناظرین, بلوچستان کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے بڑی دلچسپ ہے اور اس وقت انفولڈ ہو رہی ہے. اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن کیا مزید اور لوگ لاپتہ ہوں گے, یا جو لاپتہ مبینہ طور پہ لاپتہ افراد ہیں وہ آ جائیں گے اور اپوزیشن کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے. اپوزیشن نے ابھی ہمارے پروگرام میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو لوگ مبینہ طور کے اوپر لاپتہ ہوئے تھے, جس کے اندر سے 1 آ گئے, 4 نہیں آئے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ان کو اپنے حراست میں لیا ہوا تھا, ان کو ڈیٹین کیا ہوا تھا. یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, ہم اس کو جانچیں گے اور آنے والے دنوں میں جو ہے یہ معلوم پڑے گا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے. 33 اراکان نے اس کی حمایت میں جو ہے وہ اپنی سیٹ کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں. تو نو کانفیڈنس موشن جو ہے موو ہو چکا ہے, ٹیبل ہو چکا ہے. 25 اکتوبر کو اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی. کھل کے 33 ارکان جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. مبینہ طور پہ 5 لاپتہ تھے, ان میں سے ایک جو ہیں وہ آخر میں آئے بلوچستان اسمبلی میں اور انہوں نے کہا کہ میں دم کرانے گیا تھا اور اب میں واپس آ گیا ہوں. لالا رشید نے یہ کہا. باقی 4 کہاں گئے؟ ثناء اللہ بلوچ ہمیں جوائن کریں, جن کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی سے ہے, وہ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں. مجیب احمد ہمارے ساتھ ابھی تک موجود ہے, بلوچستان میں آج ٹی وی کے بیورو چیف ہیں. ثناء اللہ بلوچ صاحب, یہ جو 1 ارکان آ گئے اور انہوں نے کہا میں دم کرانے گیا تھا, اگر انہوں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں گے اور آپ کے ساتھ ووٹ میں شامل ہوں گے, نو کانفیڈنس موشن میں شامل ہوں گے, تو ان کو پھر دم کرانا آخری مومنٹ پہ کیسے یاد آ گیا؟ منیزہ تھینک یو ویری مچ. منیزہ بڑی افسوس کی بات ہے ویسے, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ جو اراکین اسمبلی ہے ان کا اس طرح اسمبلی کے اجلاس میں
उनकी शिरकत में रुकावट बनने या जो भी बनाने वाले हैं, ये बाइस शर्म हमल है जमहूरियत में। और इसका जो अंदिया और इशारा हमें तकरीबन 3 से 4 दिन पहले से मिल रहे थे, जब जाम कमाल ने कहा कि ये जो सब कुछ है ये नुमाइशी है, असम्बली में पता चलेगा कि किसके पास अक्सरियत है। वो इखलाकी तौर पर तो अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। कल जब उन्होंने आज जब उन्होंने लंच पे बुलाया तो उनके पास 18 मेंबरान थे, और आज जब असम्बली में भी वो आए तो जाम कमाल के पास सिर्फ 18 मेंबरान थे। मैं थोड़ी सी दुरुस्तगी कर लूँ, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में तारुफ में करवाया कि बलूचिस्तान असम्बली में 33 नहीं बल्कि 35 अराकीन ने, क्योंकि 34वां वही था जो लाला रशीद साहब, इसमें कोई शक नहीं है, 2 दिन से उनकी तबीयत बहुत नासाज है। अच्छा। वो बाद में आए और उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा हूं। इसके अलावा नूर मोहम्मद दुम्मड़ वजीर जो यहाँ पे पानी है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के, उन्होंने भी खड़े होकर तहरीक अदम एतमाद की हिमायत भी कर दी और अपना इस्तीफा भी साथ में पेश कर दिया। तो 35 अराकीन ने आज बलूचिस्तान असम्बली में जो है जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लिया। बाकी एक इंटरेस्टिंग बात शायद आप अपने दोस्तों से, सहाफी जनरल से भी पूछ सकते हैं कि जब जाम कमाल तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त उनके साथ सिर्फ 9 मेंबरान आखिर में रह गए थे। उनकी तकरीर सुनने के लिए भी उनके दोस्त जो है मौजूद नहीं थे। तो सीधी सी बात यह है कि दिल से, यानी जो क्या कहते हैं कि एक शौक से कोई भी उनके साथ नहीं है। अगर भी इस वक्त भी किसी मेंबर को रोकने की कोशिश की जा रही, दोस्त धमकी, किसी को अब से भेजा में रखा है, और ये 4 मेंबरान में से 3 खवातीन हैं, एक और हमारे रुकने असम्बली हैं। इस वक्त उनका हम कोशिश कर रहे हैं, अभी बिल्कुल 2, 4, 5 मिनट पहले उनसे किसी का राब्ता हुआ है? अपोजिशन आपका राब्ता हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमें कहीं पर मेरा खुद राब्ता नहीं हुआ है, बाकी मेंबरान का, उनके अपनी पार्टी के जिससे हैं उनका ताल्लुक बाप से है, तो उन्होंने कहा कि उनसे राब्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें किसी जगह पे रखा गया और हमें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। वो इसी वाले से अभी मुत्तहिदा अपोजिशन, बाप और जो भी ये तहरीक अदम एतमाद के हक में जमातें हैं, तकरीबन 36-35 के करीब यहाँ अभी भी कुछ 5-10 मिनट पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और ये अनाउंस किया, ये ऐलान किया कि जब तक वो वापस नहीं आते हैं हम असम्बली से ये बाहर नहीं जाएंगे। और ये भी साथ में ऐलान हुआ कि सोमवार तक, क्योंकि सोमवार का दिन अब गिनती के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की काउंटिंग के लिए उन्होंने रख दिया है कि उस दिन उस पर बाकायदा वोटिंग होगी। तो उन्होंने कहा, हमने सब ने ऐलान किया कि हम सबको खतरा है, क्योंकि इस वक्त जाम के पास हुकूमत है, डंडा है, गुंडा है, पैसे हैं, सब कुछ है। और इम्कान यही है कि बलूचिस्तान में जिस तरह 3 सालों में उन्होंने बहुत सी रिवायात को पामाल किया, बिल्कुल इस बात का भी कभी इम्कान है कि वो इन रिवायत को पामाल करते हुए इस 3-4 दिन में और भी अपनी असर रसूख और हुकूमती ताकत का इस्तेमाल करके मेंबरान को तोड़ने, हिरासा करने, खौफजदा करने, दोस्त धमकियां देने के बायस उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बड़ी बात ये है कि जी सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, ज़ियाउल्लाह लांगो जो इस वक्त जाम कमाल साहब के साथ हैं। ज़ियाउल्लाह लांगो साहब, सनाउल्लाह बलोच साहब ये कह रहे हैं कि जब वोटिंग का टाइम आएगा तो मेंबरान को हरासा किया जाएगा। उनका ये कहना है कि जो आज 4 अराकीन नहीं आए उनसे राब्ता भी किया गया है और उन्होंने बताया कि उनको कहीं डिटेन किया हुआ है, उनको कहीं रखा हुआ है। तो क्या आप जो अराकीन आपके खिलाफ, आपकी वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करने आ रहे थे, क्या आपने उनको डिटेन किया है? आपने उनको नहीं आने दिया असेंबली के अंदर आज? देखिए सनाउल्लाह बलोच साहब तो माशाल्लाह गलत बयानी के जो है आलमी रिकॉर्ड रखते हैं। कोई बलूचिस्तान है, यहाँ रिवायात हैं, खवातीन की अपनी रिवायत हैं, यहाँ सब कबायली लोग हैं, किसी को आप हरासा नहीं कर सकते हो। जो भी आया, मैं भी इजलास में आज नहीं था, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी नहीं थे, सलीम कोसा साहब नहीं थे, सरदार यार मोहतरिन साहब नहीं थे, हम सब अपनी मर्जी से आज इजलास में नहीं थे। इसका मतलब नहीं किसी ने में हरासा किया है। बलूचिस्तान के अपने रिवायात हैं, यहाँ सियासी लोग हैं कि हम सियासत के लिए कोई गैर जमहूरी तरीका कभी ना इस्तेमाल किया है, न कोई गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सनाउल्लाह साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस पे क्या बात कहूँ, मेरे ख्याल में अगर वजीर दाखिला साहब, ये असम्बली में स्पीकर ने रूलिंग इस बात पे दी, ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि जो लोग इस वक्त असम्बली में गैर हाजिर हैं या लापता हैं या वो नहीं आए, उनका ताल्लुक वो बाप के मुनरफीन में है जो जाम कमाल के हवाले से जाम कमाल की हुक्मरानी के खिलाफ उन्होंने अदम इत्माद तहरीक का हिस्सा बने। ये बात बड़ी सोचने की है कि स्पीकर ने उस पर रूलिंग दी। खुद बाप पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा है, इस वक्त आपको बताऊं कि बाप पार्टी की सूरत हाल क्या है। 13 अराकीन पर मुश्तमिल जो अक्सरियती जमात है, उन्होंने जाम कमाल के खिलाफ जो है अदम इत्माद किया। बाकी रह जाते हैं बाप पार्टी में 11। तो अक्सरियती जो उनका तर्जुमान है सरदार अब्दुल रहमान केतरान साहब, पहली तकरीर उन्होंने उठ के की कि हमारे 5 अफराद जो है उस
तहरीक में शामिल होने आ रहे थे उनको रोक दिया गया। ये पहली बात उनकी तरफ से हमें भी मालूम हुआ। उसके बाद ये बात लीडर ऑफ अपोजिशन ने की और तसल्सल के साथ तमाम मेंबरान कह रहे हैं। ज़िया लांगव साहब मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बारे में जो भी कहे उनको हक है, लेकिन ये बात अब वो क्या कहते हैं कि आप सूरज को एक उंगली से छुपा नहीं सकते। एक मसला है, अगर ऐसी बात नहीं है ज़िया लांगव साहब मेहरबानी करें इन 3 खवातीन को और रुकन असेंबली है उनको कहीं से ले आए। ये अहम बात है, ये आपने जो बात की है अहम है। देखिए मुनीज़ा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोग मुझे लाने की जरूरत नहीं है, ये खुद थोड़ी कहीं जरूर कहीं अपनी मसरूफियात में होंगी। इस रुकन असेंबली है, ये थोड़ी सर इस अहम दिन के ऊपर ये मसरूफियात, मुजीब साहब भी बैठे हुए, मुजीब अहमद साहब बलोचिस्तान में आज टीवी के ब्यूरो चीफ हैं। मुजीब साहब, क्या सहाफियों की इन 4 लोगों से बातचीत हुई है, और जो एक आए हैं दम करा के, उन्होंने आपको क्या बताया? देखें, जो लाला रशीद आए उनका ये कहना था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो दम कराने गए थे। उसके बाद उन्होंने तारिक मक्की से भी बात की, उनको कहा कि वो डॉक्टर के पास गए थे और वाकई हकीकत भी है कि उनकी तबीयत 2-3 रोज से सही नहीं थी। कल रात के जो अशाइया दिया गया था स्पीकर की जानिब से मुतहदा अपोजिशन और नाराज ग्रुप का, उसमें भी वो शरीक नहीं हुए थे। लेकिन दीगर जो 4 अरकान हैं उनसे किसी का, मीडिया वालों का बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हो सका। हम ट्राई जरूर कर रहे हैं लेकिन हमारा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। जो सना बलोच साहब ने बात की उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। सना बलोच साहब सीनियर हमारे सियासतदान हैं। एक चीज, उनकी पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा है बलोचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से, बीएनपी का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इसको किसने बनाया, किसने कायम किया, किसने चलाया। तो उस वक्त उनको सब पता था कि कौन बना रहे, कौन चला रहे, और आज भी उनको पता होगा कि जो लोग बनाते हैं, बिगाड़ते भी वही हैं, चीजें संभालते भी वही हैं। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखें ना। सनाउल्लाह साहब वो कह रहे हैं कि जो लोग बिगाड़ते हैं और आज बिगाड़ रहे हैं जाम कमाल साहब का, तो संवारते भी वही हैं। वो कह रहे हैं इस चीज को मद्देनजर रखें। बड़ी अहम बात की है मुजीब साहब ने, गहरी बात है और अहम है। मुनीज़ा, बिल्कुल आई टोटली एग्री। बलोचिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो सियासत का उलिया इस वक्त बिगड़ा हुआ है, इसके पीछे बहुत से गलतियां, रियासती इदारे, हमारी जो है जो मुक्तदरा है उसका रोल है। आज पाकिस्तान दुनिया में सियासी तौर पर एक बावकार मकाम क्यों हासिल नहीं कर सका? इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन एंड डिबेट, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, जब हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जिन लोगों ने बनाया, जिन लोगों ने जाम को यहाँ पर हमारे ऊपर मुसल्लत किया, हमने उसी वक्त से कहा था कि एक ना तजर्बाकार शख्स को जब आप बलूचिस्तान जैसे कम्प्लेक्स सूबे में, जहां पर तनाजा चल रहा है, तजादात हैं, जहां पर लोग जो हैं बहुत बाशऊर हैं सियासी तौर पर, यहाँ पर तरक्की के मसाइल हैं, जमहूरियत के मसाइल हैं, इंसानी हकूक के मसाइल। मुजीब साहब जो हैं वो ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं आप और आपकी पार्टी और जो दीगर अरकान हैं आपके साथ, वो कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे उन्हीं कुव्वतों से जो बिगाड़ते हैं और सवार 4 अरकान लापता ना होते। अगर हम इस्तेमाल हो रहे थे, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाम कमाल इतने ताकतवर नहीं होते कि वो 4 से 5 अरकान को जो है इस वक्त जो है वो गैराजिर करते या लापता करते। लेकिन डायनामिक्स पॉलिटिक्स में काफी चेंज हो जाते हैं। आप लोग अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 से 10 मिनट पहले हुई है, वो एटीट्यूड देख लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। जरूरी नहीं है, अगर लोगों में कुछ गलतियों के बाद एक एहसास जन्म ले लेता है कि हमारे सूबे को इस तरह वो क्या कहते हैं कि ड्राइंग रूमों से कंट्रोल करने की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, तो ये एक अच्छी रिवायत है। वी हैव टू इनकरेज देम। हमने तो यहाँ पर खुदा ना खास्ता ये तो नहीं कहा कि सारी जिंदगी के अगर लोग राय रास्त पे आ जाते हैं, लोग बलूचिस्तान में हकीकी जमहूरियत की बात करना शुरू कर देते हैं, लोग अगर कहते हैं कि हम अपने फैसले खुद करें, तो हम उनको डिस्करेज क्यों करें? हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा है कि बलूचिस्तान को एक कंट्रोल डेमोक्रेटिक कल्चर के तहत, डेमोक्रेटिक भी नहीं है, कंट्रोल अथॉरिटेरियन कल्चर के तहत चलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो है इंतखाबात इंजीनियर होते हैं, हुकूमतें बड़े पॉलिटिकल मैनेजमेंट के जरिए से यहाँ पर बनाई जाती हैं, तश्कील दी जाती हैं। बट इट्स गोइंग टू बी, मैंने आपको कहा कि ये बहुत पाकिस्तान की 1970 के बाद से बलूचिस्तान के साथ जो हो रहा है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिटेल्ड डिस्कशन। और इसके नहीं, देखिए वो डिस्कशन जो है वो तो बाद में होगी, मगर अभी जो सूरत हाल बनी हुई है ज़ियाउल्लाह लांगो साहब, सवाल ये है कि ये जो लोग इस वक्त ना सहाफियों की रसाई में है, सहाफियों को रसाई इन तक नहीं है, इनके अपने जो मेंबर्स हैं पार्टी के उन तक वो नहीं रसाई कर सकते, तो फिर आप हुकूमत के अंदर हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा हुआ है। क्या आप इनको कहीं से ढूंढ के नहीं ला सकते? ये इनको जमीन निकल गई, आसमान खा गया, गए कहाँ ये अराकीन जिन्होंने वोट देने? देखिए मुनीज़ा, अभी आप खुदा न खासा आप कहीं जा रही हैं, आप अपना मोबाइल ऑफ कर रही हैं,
अगर ऐसा कोई मसला हो, आपको कोई सीन उठाया हो, आप गवर्नमेंट को कोई आपके फैमिली की तरफ से कोई शिकायत कहीं से कोई हो कि आप कहाँ, अभी कोई बंदा गया है, उसने अपना मोबाइल ऑफ किया है, उसकी पर्सनल लाइफ है, जब तक उसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आती है हमें क्या पता वो कहाँ गया है, किस लिए गया है। अच्छा, तो अभी भी आप मोनिजा अगर मैं चलूं थोड़ा सा। जी जी, देखें, ये खवातीन कल रात को, ये खवातीन अरकान असम्बली कल रात को 11 बजे तक एक इशाइये में आ सकती हैं। इन्होंने बरमला तौर पर गुज़िश्ता 1 महीने से इस तहरीक का हिस्सा हैं। आज ये तहरीक अपने मरहले का जो पहला फेज है उसके बहुत ही क्रिटिकल मरहले में हिस्सा लेना चाहती थी, और हमें इस बात का इदराक है, हम अभी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान का जो सियासत का ये रुख है, ये दुनिया में ना आए। हम दुनिया के सामने और बेआबरू क्यों करना चाहते हैं पाकिस्तान के इदारों को? पाकिस्तान की सियासी मुक्तदरा जो है या जो अस्करी मुक्तदरा है उसको ये बात समझनी होगी कि बलूचिस्तान इस डगर पे जिस पे जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। मैं अभी भी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूँ। जिसने भी ये गलती की है थोड़ी देर के लिए उनको वापस ले आया जाए। ये कल्चर दुरुस्त नहीं है। अगर वो कल रात को 11 बजे तक इशाइये में बैठ सकती हैं, आज जो है 4 बजे इजलास में अचानक उनको कोई शॉपिंग पड़ गया या कोई काम पड़ गया और मोबाइल, और 3 खवातीन वो आराम कर रही हो या उनकी फैमिली जो अभी तक शिकायत नहीं की, हम उनकी फैमिली है, एज ए मेंबर असेंबली वी आर देयर फैमिली। राइट, तो ये मामला अभी तक उधर ही है सनाउल्लाह बलोच साहब, और हम 25 अक्टूबर को भी देखेंगे कि क्या होगा जब वोट का टाइम आएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर नाजरीन बलोचिस्तान के अंदर वोट होना है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह साहब, सनाउल्लाह साहब, मुजीब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, बलोचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो अनफोल्ड हो रही है। 25 अक्टूबर को बड़ा अहम दिन होगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग होगी। वजीर आला जाम कमाल साहब जो हैं वो वजीर आला रहते हैं या नहीं रहते हैं, और अगर नहीं रहते हैं तो क्या एक नया सिलसिला, एक नया सीजन शुरू होगा तहरीक अदम एतमाद का? क्या ये तहरीक अदम एतमाद जो है बलूचिस्तान तक महदूद रहेगी? ये देखना बाकी है। मगर एक और अहम डेवलपमेंट नाजरीन हुई है, और वो ये है कि पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट फिर से बहाल कर दी गई है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो ज्यादातर जिनकी तादाद थी उन्होंने उसको डिसॉल्व कर दिया था। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन थे वो गए सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया लोकल गवर्नमेंट को। जब बहाल कर दिया तो फाल नहीं की गई, और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बुलाया पंजाब के ऑफिशियल्स को और उनको एक तरीके से वार्न किया और कहा कि आप लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको आप फाल करें पंजाब के अंदर। इस वक्त जो है लोकल गवर्नमेंट्स का जो नोटिफिकेशन है वो हो चुका है, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ और हमें पता चलना चाहिए कि क्यों नोटिफिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ। इसके ऊपर भी उन्होंने एक इंक्वायरी जो है वो कर ली है। हमारे साथ है अहमद इकबाल चौधरी, जिला काउंसिल नारोवाल के चेयरमैन है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद इकबाल साहब। अब मुझे बताइए जो लोकल गवर्नमेंट का फ्यूचर है वो क्या है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और जनवरी के अंदर जो आपकी मौजूदा लोकल गवर्नमेंट थी जिसको वोट मिले थे 2013 में लगभग, उन्होंने एक्सपायर हो जाना है। मुझे मालूम है कि एक और पिटिशन भी दायर की गई है कि जी 2 साल के लिए इसको और एक्सटेंड किया जाए, मगर अब लोकल गवर्नमेंट का क्या होगा? पंजाब में लोकल गवर्नमेंट आपकी आएगी, फाल होगी, 2 महीने बैठेगी, फिर खत्म हो जाएगी? देखिए, 2-3 बुनियादी चीजें हैं। एक पहली बात तो ये कि अभी तक पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट्स को उस तरह बहाल नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2021 को ऑर्डर पास किया था, और आज इसी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो पंजाब हुकूमत पर बरहम हुए कि आज 7-8 महीने गुजरने के बाद आप एक ऐसा नोटिफिकेशन लेके आए जिससे ये भी नहीं मालूम हो रहा कि आया मुकामी हुकूमतें बहाल हो गई हैं या नहीं हुई। और उस नोटिफिकेशन की अगर आप उसको आप पढ़ें तो उसको समझने में शायद आपको 15 और नोटिफिकेशन निकालने पड़े। उन्होंने इस तरह का एक मुश्किल नोटिफिकेशन बनाया, लेकिन इस वक्त हकायक ये हैं कि ना पंजाब की इंतजामिया जिसके पास डिप्टी कमिश्नर्स जिनके पास इन मुकामी हुकूमतों का आर्जी चार्ज था, ना वो चार्ज छोड़ने के लिए तैयार है, ना वो कोऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ना इन इदारों में कोई पोस्टिंग्स ट्रांसफर नहीं है, तो अगर मैं कल को अपने दफ्तर चला भी जाऊं तो वहां कोई चीफ अफसर मौजूद नहीं, वहां कोई डीओ फाइनेंस मौजूद नहीं, वहां आप इजलास नहीं बुला सकते।
اسی طرح بے تحاشا، اور یہ پنجاب حکومت بارہا عدالتوں کے ساتھ یہی ان کو چکمے دینے کی اور دھوکے دینے کی کوشش کرتی رہی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو 30 مہینے پاکستان کی ریاست نے جو پاکستان کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ جس کو آپ ووٹ دیں گے وہ 5 سال کے لیے آپ کی یونین کونسل کا چیئرمین ہوگا، آپ کا کاؤنسلر ہوگا، اس میں خواتین بھی تھیں، اس میں اقلیتی نمائندے بھی تھے، اس میں کسان، مزدور، جنرل کاؤنسلر، چیئرمین، 58,000 نمائندے موجود تھے۔ یہ وعدہ تھا ریاست کا کہ یہ 5 سال کے لیے آپ کے مسائل حل کریں گے۔ نہیں مگر دیکھیے احمد صاحب، ہم نے کوشش کی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کسی نہ کسی کو، ہم جاوید کوثر صاحب کو ہم نے دعوت دی تھی کہ جی وہ آئیں ہمارے پروگرام میں اور شرکت کریں اور کم از کم یہ بتائیں کہ کیوں ایسا ہوا ہے اور اب ان کا کیا اور ارادہ ہے کہ کیا وہ فعال کریں گے کہ نہیں کریں گے، مگر وہ نہیں آئے ہمارے پروگرام کے اندر۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اب یہ جو حالات اس طرح کے بنے ہیں، آپ کو کیا امید ہے عدالت سے؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 2 سال آپ کی مزید جو ہے ٹرم بڑھا دی جائے گی؟ اور اگر بڑھا دی جائے گی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وقت پروونس کے اندر ہے۔ اب اگر آپ 5 سال میں سے اگر اختیارات 2 یا 2.25 سال کی لکھتے آپ کی آواز جو ہے ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ بہت بہت شکریہ احمد اقبال چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے بتایا کہ کس قسم کے